Welcome, beautiful souls. Welcome to Question Crystals. My name is Chiragi Dakshini and my soul name is Kaira. I'm a Tarot and Akashic reader. I'm also a palmist. I'm also a channel and medium who can talk to the past over loved ones. I'm also a Vedic astrologer and a Kundalini yoga trainer. I'm also having a couple of master degrees, multiple certifications. तो ये हुई मेरी बात. जो हमारी आज की रीडिंग है, इट्स ऑल अबाउट पीपल हु आर इन नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन. आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं, नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं, मैसेजेस क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, और अगर इंपॉर्टेंट ब्लॉकेजेस या टाइमलाइंस आ रही हैं तो दैट ऑल्सो वी विल डीकोड टुडे. तो विदाउट अ फर्दर ड्यू चलिए एक फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं. व्हाट्स गोइंग ऑन. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप. ओके टुगेदर, लेट मी ग्राउंड. The universe, your spirits, your ancestors, your angels, your spirits guide. Let me help cleanse my mind, body, soul, my space, my cards, my altar from any previous reading energies which are residue. Please cleanse all the residue energies from the previous readings. Let me access universal consciousness. So be it. मुझे बताइए मेरे व्यूअर जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनके पार्टनर के बारे में जिनके साथ वो सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है. मुझे बताइए उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज उनके लिए क्या है. शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. The cards are coming in chunks, so like I'm going to take all because they came like clusters. So yeah. मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में restart होने वाला है. Your partner is in current energies that they want to restart this connection. They want to come towards you. Because overall bottom deck energy is the Ace of Wands. They feel a lot of passion towards you. काफ़ी attraction है. मुझे लग रहा है कि वो restart करना चाहते हैं because there are, I can't Ace of Pentacles, Ace of Cups, Ace of Wands. Beautiful energies, guys. Claim this with 1111. मुझे लगता है जो भी चीज़ें चल रही है, this is temporary. Your person is coming towards you. Page of Wands का कार्ड आया है. They want to come towards you, bearing a message. By the way, that's my 2-year-old. She's a little excited, as always. Judgment का कार्ड भी मेरे लिए renewal का कार्ड है. It's also a card of restart in the connection. लेकिन हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे. I'll clarify all the cards overall. आगे जो केवल मुझे बताइए what is the overall energy all about. Ace of Wands को क्लैरिफाई करिए. Ace of Wands को क्लैरिफाई करिए. overall energy को क्लैरिफाई करिए. वो आपके लिए insane amount of passion feel करते हैं. This looks like a face card of you. मुझे लगता है कि they are attracted to you. You are enjoying your life. You're independent. You are beautiful. You are everything that can attract anybody. और इसीलिए वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइस. मुझे लगता है कि वो स्ट्रेंथ जुगाड़ रहे हैं, अभी अपने विल पावर पे काम कर रहे हैं. दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू. दे फील अट्रैक्टेड टू यू फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ. मुझे लगता है कि अब ये जो 4 of Swords है, दिस इज रिवर्स. अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हो तो दे आर कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू. बाय द वे, दिस बैकग्राउंड म्यूजिक इज काची माय डॉटर. ओके, 9 of Cups को क्लैरिफाई करिए. व्हाई इज दिस 9 of Cups हियर? My goodness. Insane amount of passion they feel towards you. Page of Wands is twice in this particular reading. Beautiful energies. कहीं ना कहीं आप उनकी सारी खुशियां हो. 9 of Cups is card of happiness, wish come true, wish fulfillment का कार्ड है. You are their wish fulfillment. Beautiful. They want to come towards you for sure. They want to work on this connection. I'd like to clarify this 3 of Pentacles को बताइए what is 3 of Pentacles all about. I think they want to end this no contact situation और वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं. They want to work on this connection. 8 of Pentacles भी यहाँ पे आया है, which is a card of work for me. Because वो किसी
किसी सिचुएशन पे काम करना चाहते हैं, आई लाइक टू क्लैरिफाई दिस ऑल्सो, आई डू दैट। आगे चलिए मुझे बताइए, एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए, व्हाई इज दिस एट ऑफ पेंटिकल्स हियर? बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, आपको कुछ स्टेबल और सॉलिड देना चाहते हैं, दे रियली वांट टू गिव यू समथिंग वेरी वेरी सॉलिड दिस टाइम। मतलब वादे नहीं, आई मीन as I see Ace of Pentacles here twice, they want to come towards you with something which is very tangible and solid. खोखली बातें और दावे और वो नहीं, वादे नहीं, but they really want to do it this time around. मतलब मुझे लगता है कि मुझे जब मैंने पेज ऑफ वॉन्ड्स देखा था तो मुझे लगा कि बहुत सारा पैशन है, बट नो, सिर्फ पैशन नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ सॉलिड स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हियर। आपके पर्सन जेन्युइनली इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मेहनत करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन पे, विच इज रियली अमेजिंग, ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइस। आई हैव नो आइडिया व्हाट वाज ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन। मैं चेक करूँगी व्हाट वेंट रॉन्ग इन द पास्ट। मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स को, अच्छा एक वेट, वो करंट सिचुएशन में खुश नहीं है एंड वो आइसोलेशन में, बहुत सारा रिफ्लेक्शन चल रहा है, साइलेंस का कार्ड आया है, देयर इज अ लॉट ऑफ साइलेंस गोइंग ऑन राइट नाउ, but they are really working in silence to work towards this connection to make this happen. Beautiful energies guys. मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए आगे चलो, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स फॉर मी प्लीज। अब वो इस कनेक्शन में बात करना चाहते हैं, दे हैव बीन अवॉइडिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। हैंगमैन, उनको एक अलग तरीके का, उनका नज़रिया भी क्लियर हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को लेके उनको क्लैरिटी आई है, उनका नज़रिया, उनकी सोच थोड़ी सी बदली है एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे वांट टू वर्क टूवर्ड्स यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। एज ऑफ पेंटिकल्स ट्वाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स ट्वाइस, 8 ऑफ पेंटिकल्स ट्वाइस। आई थिंक दिस पर्सन इज 100% कमिंग टूवर्ड्स यू, नो टू थिंग्स अबाउट इट, आई एम सेइंग दैट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ मेजर सेटबैक हैज हैपेंड इन दिस कनेक्शन। मेजर सेटबैक की बात करेंगे तो हम, हो सकता है बिट्रेयल भी हो सकता है, कुछ झूठ पता चले हो आपको और आपको लगा है कि इन्होंने आपको चीट किया है, स्टैब्ड इन द बैक। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स जो बेसिकली जो रेड वेट में है वो ऐसा है कि एक इंसान ज़मीन पे गिरा हुआ है, उसकी पीठ में सारी 10 तलवारें घुसी हुई है। इट्स अ कार्ड ऑफ बिट्रेयल, इट्स अ कार्ड ऑफ मेजर सेटबैक। आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें खत्म हो गई है, बस गिव अप कर दिया था आपने इस कनेक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं, बट वो एक रिन्यूअल के साथ आना चाहते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनकी एंड से गलतियां हुई हैं, ये मुझे लग रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वो जानते हैं कि अब वो अगर बातें करेंगे तो आप उन पर भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट में शायद तो अगर लिटरल बिट्रेयल नहीं था तो हो सकता है कि उन्होंने जो बातें बोली थी वो कर नहीं पाए और आपको ऐसा लगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, या यू फेल्ट बिट्रेड एंड चीटेड इन दिस कनेक्शन, और इस वजह से वो आपकी तरफ बातें लेके नहीं आना चाह रहे, आप कुछ सॉलिड लेके आना चाह रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे रियली वांट टू वर्क वेरी हार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स कमिंग ट्वाइस इन दिस कनेक्शन, 3 ऑफ पेंटिकल्स कमिंग दैट दे रियली वांट टू बिल्ड विद यू। आकेश गिब्रन मुझे बताइए व्हाई इज दिस एस ऑफ पेंटिकल्स हियर, शो मी एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। कार्ड्स आर फ्लाइंग, ओके, सो मेनी कार्ड्स। हीलिंग लाना चाहते हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं काफ़ी समय से, वो कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोच रहे हैं, हाउ टू कम टूवर्ड्स यू। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स आर रिपीटिंग, जजमेंट डबल टाइम, ऑल द कार्ड्स आर रिपीटिंग, जजमेंट सेकंड टाइम, यहाँ पर जजमेंट, यहाँ पर जजमेंट। 100% मुझे लगता है कि आपने उनको कंडीशंस रख दी थी, आपने बाउंड्रीज रख दी थी, आपने बोला था कि ये करना है, मुझे ऐसे चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर। अगर कुछ मेजर सेटबैक हुआ था इस कनेक्शन में, हो सकता है उन्होंने जो बोला वो किया नहीं, टाइमलाइंस दी थी आपने या कुछ भी, तो आपने बोल दिया कि ऐसे तो नहीं चलेगा। यू रेज योर बाउंड्रीज एंड यू डिमांडेड व्हाट इज राइट, यू हैव सेड कि जो मेरे लिए सही है वो करो। अब आपने बोल दिया कि अब ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, आप गोल गोल बातें कर रहे हो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दे हैव टेकन दिस सीरियसली, और दिस टाइम अराउंड उनको पता है कि आप वो सिर्फ बातें करेंगे तो नहीं सुनोगे, यू वांट समथिंग सॉलिड एंड दैट्स व्हाई दे आर कमिंग विद समथिंग सॉलिड। आखिर जगह मुझे 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज, व्हाई इज दिस 8 ऑफ कप्स हियर? आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से वो काम बॉर्डर्स में जाना चाहते हैं, अब वो इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, दे डोंट वांट टू लीव यू, दे वांट टू लीव द सिचुएशन।
दे वांट टू कम टू कामर वाटर. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ कार्ड ऑफ लाइक जो भी चल रहा है उसमें से हटना चाहते हैं, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होना चाहते हैं. वो मतलब they love you and they don't want to leave this connection, so they are leaving this no contact situation. इससे निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं. This is what I feel. Lovers card, beautiful energies guys. 11 claim this energies, beautiful energies. Judgment को clarify करिए आकाश केवल. Clarify the judgment for me please. उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं. अगर उन्होंने गलतियां करी है तो पेज ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ सॉरीज फॉर मी. माफ़ी मांगने वाले हैं, सॉरी बोलने वाले हैं. विल क्लैरिफाई विद इंटेंशंस ऑल्सो. हम लोग इंटेंशंस दूसरी डेक से चेक करेंगे, बट या आई थिंक दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू 100%. जजमेंट इज क्लैरिफाइड विद जजमेंट. आई लव इट व्हेन द एनर्जी इज 100% एक्यूरेट. ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस. क्लेम दिस विद 11. एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज आगे जो केवल. इट मेक्स अस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. इमोशंस भी हैं लेकिन स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं. ओह माय गुडनेस, ब्यूटीफुल. 4 of wands is the bottom deck energy. They want to make a solid start. सिर्फ इमोशनल स्टार्ट नहीं लेके आ रहे हैं. This ace of cups is backed by a strong knight of pentacles and 4 of wands. ये हवा में बात नहीं कर रहे. They are not just going to come and talk about emotions and beautiful romantic things and all. No, this is solid. आपके पर्सन आपकी तरफ सॉलिड स्टार्ट लेके आना चाह रहे. दे आई वुडंट बी सरप्राइज अगर वो मंगलसूत्र या रिंग लेके आ रहे हैं आपकी तरफ. एंड दे आर सेइंग लाइक चलो लेट्स जस्ट इन दिस चेस एंड लेट्स गेट मैरिड. सन, द मोस्ट हैप्पी कार्ड ऑफ द डेक. यस, ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइस. अब मैं उनकी तरफ से उनके इमोशंस चेक करना चाहूँगी. देन विल चेक द इंटेंशंस, then messages, and then important blockages or timelines. This overall energy that your person is in, thinking about you, missing you. 6 of cups ka card. Beautiful energies guys. 11 claim it. I'll check what is exactly emotionally how they are feeling right now. Okay, Chiribul, cleanse my cards. चलिए मुझे बताइए वेयर इमोशनल डेक. यस, सो फॉर द इमोशंस आई एम गोइंग टू चेक मैसेजेस ऑफ लव टैरो डेक. इट हैज प्लेथोरा ऑफ इमोशंस हियर. मुझे बताइए बेटा, मेरे पार्टनर, लेट मी ग्राउंड फर्स्ट. The universe is presence as a speed, cleanse and heal my cards, my space, my altar, my mind, body and soul from the residues of the previous reading. Cleanse my energy fields. So be it. ओके, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर जिनके साथ में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं. मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जीज टुवर्ड्स देम जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, उनके करंट एनर्जीज फॉर माय व्यूअर. क्या फीलिंग्स क्या है उनकी, ये बताइए. शो मी द फीलिंग्स. Cards are flying. Anything else? Okay. Absence. 6 of Cups overall energy is a card of missing, remembering. I told you. The card reads, I feel like a part of me is missing without you. Beautiful energies guys. Claim this. मैंने बोला ना, reciprocity is coming. आपके partner, I want to have equal give and take. आपकी तरफ आना चाह रहे हैं. If they have been unfair in the past, they want to make it right. सेल्फ लव की एनर्जीज में है. आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील. मैंने बोला ना कुछ मेजर बिट्रेयल हुआ था आपके कनेक्शन में, हो सकता है आपकी एनर्जी भी हो सकती है, बट मुझे आई रियली फील दैट कि आपके पर्सन की एनर्जी है जो अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं एंड दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू. यस, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड. वो उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलतियां करी है पास में. उन्होंने आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हो या आप चाहते हो इस कनेक्शन में, बट दे आर रियली मेकिंग इट राइट. आपको वो देना चाहते हैं, वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो. वो आपको वो देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो या चाहते हो इस कनेक्शन में. डिसएग्रीमेंट्स थे आपके बीच में. आपके पर्सन बोल रहे हैं, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील.
वो चाहते हैं कि आप समझे कि वो क्या फील करते हैं. मैं और देखना चाहती हूँ. आई वांट टू अंडरस्टैंड. आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील को क्लैरिफाई करिए. व्हाट डू यू मीन? 100%. वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस. आप दोनों के बीच में वैल्यूज़ का बहुत गैप है, अंडरस्टैंडिंग का गैप था. दे अंडरस्टैंड इट नाउ. रीयूनियन का काल है. वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर. I love it when the energies are 100% accurate and beautiful energies, guys. So ये उनकी feelings है. Is there anything else coming through? Is there anything else you want to say? कोई feeling के लिए एक overall feeling बता दीजिए. Overall मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स ओवरऑल क्या है उनकी. एक कार्ड दे दीजिए मुझे. I'm little nosy. मुझे एक कार्ड दे दीजिए. Just give me one card. Overall energies. Indecision. Damage. मुझे लगता है कि उनको समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत सारा डैमेज किया इस कनेक्शन में. मैंने बोला कुछ मेजर किया है उन्होंने. हालांकि दे हैव फ्लक्चुएशंस इन देयर एनर्जीज राइट ना. आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक डिसीजन हर्ट्स यू. मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर ने पास में आपको कमिटमेंट नहीं दिया या नेक्स्ट लेवल नहीं गया. शादी के लिए पहल नहीं करी. दे हैड इनडिसिसिवनेस जिसकी वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हुई. आपने बोला बस हो गया. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था जहाँ पे आपने अपनी बाउंड्रीज रेज कर दी और बोला कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी एंटरटेन एनी मोर. मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं एंड दे आर कमिंग विद अ न्यू चैप्टर टुवर्ड्स यू. न्यू चैप्टर को क्लैरिफाई करिए प्लीज. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था. मैंने बोला था बिट्रेयल. कुछ चीज़ें आपको पता चली हैं. उनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है. उन्होंने झूठ बोले हैं एंड दे रियलाइज देयर मिस्टेक्स. आई डू फील दैट. आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट. बट उनको ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं. यू हैव अनफिनिश्ड बिजनेस. वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजोल्व एंड डिस्कस. आप दोनों की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. दिस इज नॉट ओवर बिटवीन द टू ऑफ यू. Oh God. So yeah, their feelings are like कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है. उनको realizations हैं. उनकी गलतियाँ उन्होंने जो indecisiveness की वजह से delays किए हैं, आपसे कहीं ना कहीं चीज़ें छुपाई हैं, झूठ बोले हैं. Yes, these are their feelings. Intentions check कर लेते हैं. अभी उनकी ये feelings हैं. बट मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो वापस आना चाहते हैं. न्यू चैप्टर शुरू करना चाहते हैं आपके साथ में. एंड दे फील दैट दिस इज अनफिनिश्ड. आप लोगों का अभी ख़त्म नहीं हुआ है. They are coming back. Let me just cleanse. चलिए अब उनके इंटेंशंस चेक करते हैं. आके चुके बिल मेरे व्यूअर जिनके साथ में नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, मुझे बताइए कि उस पर्सन के उनके लिए इंटेंशंस क्या हैं. उनके इंटेंशंस बताइए मेरे व्यूअर के लिए और उनके इस कनेक्शन के लिए. उनके इंटेंशंस बताइए मुझे. एनीथिंग एल्स कम? एनीथिंग एल्स? ब्लेस्ड. कहीं ना कहीं वो ब्लेस्ड फील करते हैं आपके कनेक्शन को और आपको पाके उनकी ज़िंदगी में. 10 ऑफ कप्स का कार्ड था इन द फर्स्ट रेडियो वेट में. साइलेंस. अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं 100%. तो इस साइलेंस को मैं क्लैरिफाई करूँगी. उनको लगता है कहीं ना कहीं ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड है. जैसे उसमें आया था ना कि अनफिनिश्ड बिजनेस था ना कि वी ऑलवेज विल कम बैक टू ईच अदर. वी हैव थिंग्स टू डिस्कस. They are going to come back to you. Yes, 100%. आप उसके लिए वेट कर रहे हैं. आपको वो वेट करवा रहे. दे अंडरस्टैंड दिस. मुझे ये क्लैरिफाई करिए. व्हाट इज साइलेंस, प्रोटेक्टेड एंड वेट को क्लैरिफाई करिए. क्लैरिफाई साइलेंस फॉर मी. वो चुप है लेकिन वो जानते हैं कि आप दे नीड यू. उनको पता है कि आपसे ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत है. उनको ये चीज़ पता है कि दे नीड यू. उनकी साइलेंस कहीं ना कहीं साइलेंस है लेकिन वो अगर कह सकते तो उनकी साइलेंस में ये छुपा हुआ है कि दे नीड यू. प्रोटेक्टेड, होल्ड मी. प्रोटेक्टेड इज क्लैरिफाइड बाय होल्ड मी. वो ये कह रहे हैं कि होल्ड मी, मुझे बाहों में भर लो, जस्ट मुझे गले लगा लो, होल्ड मी. उनको कहीं ना कहीं आपके पास आके बहुत प्रोटेक्टेड फील होता है. दे फील सेफ विद यू. हो सकता है कि दे हैव सम फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल क्योंकि उन्होंने इनडिसिसिवनेस थी. वो पास्ट में आपको कमिटमेंट का बोल के कमिटमेंट नहीं दिए. टाइम पे जो एक्शन लेना था नहीं लिया.
एंड दैट इज़ द रीजन वाई यू फीलिंग समवेयर बिट्रेड, और इस वजह से आपने अपनी बाउंड्रीज रेज करी है. आई विल चेक फ्रॉम द ब्लॉकेजेस ऑल्सो कि क्या ब्लॉकेजेस हैं. मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पर्सन को हो सकता है कि fearful avoidant attachment style कमिटमेंट फोबिया हो सकता है. बट येस, आई डू फील दैट दे फील प्रोटेक्टेड व्हेन दे आर विद यू. जब वो आपकी बाहों में होते हैं तो उनको काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करता है. किस चीज़ के लिए वेट करवा रहे हैं बताइए मुझे. दे आर हैंडलिंग द कार्मिक बैटल्स राइट नाउ, इस वजह से वो वेट करवा रहे हैं आपको. दे आर सेइंग कि मैं अपनी जो कार्मिक बैटल्स हैं, अपने अनफिनिश कर्मा है, अनफिनिश बिजनेसेस हैं लोगों के साथ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं. एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू. ओके, इंटेंशन का ओवरऑल इंटेंशन बता दीजिए. व्हाट इज देयर ओवरऑल इंटेंशन इस कनेक्शन को लेके? एक कार्ड बता दीजिए मुझे. फॉरगिव एंड अगेन ब्लेस्ड. वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको हर्ट किया है. They want forgiveness first in this connection. They feel that they are very blessed to have you. अभी उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, स्लीपलेस है वो. हो सकता है कि बहुत स्ट्रेस में होंगे. They might be really thinking कि आप उनको माफ़ करोगे या नहीं माफ़ करोगे. They feel a lot of intensity towards you. इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है because so many aces have come. Ace of Pentacles, Ace of Cups, Ace of Wands. वॉन्टिंग, वो आपको चाहते हैं. दे वॉन्ट यू. उनके इंटेंशन क्या है? दे वॉन्ट यू. माई वर्ल्ड, ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइस. वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि आप उनकी दुनिया हो. एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. आपको कार्मिक बैटल्स खत्म करके दे फील वेरी प्रोटेक्टेड व्हेन दे आर विद यू. दे फील ब्लेस्ड टू हैव दिस कनेक्शन एंड यू इन दिस लाइफ. एंड देन वो ये कह रहे हैं कि मेरे इंटेंशन ये है कि आप मेरी दुनिया हो, मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं. आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू. मैं ब्लॉकेजेस चेक करूँगी उनसे, उनके कि क्या ब्लॉकेजेस हैं. इफ़ द इंटेंशंस आर सो ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल इंटेंशंस गाइस. आप मेरी दुनिया हो. दे वांट टू होल्ड यू. दे वांट टू से दैट यू आर माई वर्ल्ड. बस वो आपको इसलिए वेट करवा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहे हैं उसको ख़त्म करने हैं. That's my daughter by the way. So let's understand कि क्या blockages हैं. Then we will check the messages. In the end we will see that कि कब तक ये new start आपकी लाइफ में होने वाला है. So yeah, these are my own cards, Crystal Crystal cards. I made them. मेरे 10 साल की एक्सपीरियंस का निचोड़ कह सकते हैं आप इनको. मैंने जो लाइफ में देखा है कि क्या क्या मेजर ब्लॉकेजेस होते हैं कनेक्शन में. Those are all mentioned here. The truths of the card connections. Archangel Gabriel, cleanse my cards of any residue energies from the previous reading. मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनके कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस हैं या उनके पर्सन के साथ क्या इश्यूज है जो इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है. शो मी व्हाटएवर इज कमिंग थ्रू. ब्लॉकेजेस बताइए इस कनेक्शन के ब्लॉकेजेस बताइए मुझे. इस कनेक्शन के ब्लॉकेजेस बताइए मुझे. ओके मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते थे क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको वो नहीं दे रहे थे जो आप डिजर्व करते थे. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, विच इज़ अ कार्ड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो. रेजिंग बाउंड्रीज, स्पीकिंग आउट, आस्किंग व्हाट इज़ राइट. मुझे लगता है आपके पर्सन अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं. तो ये बहुत, और कार्मिक बैटल्स का भी कार्ड आया था, तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ अभी बहुत मेस्ड अप चल रही है. आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट. मुझे लगता है बहुत सारे मेजर सेटबैक्स से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, उनको हैंडल कर रहे हैं. इमोशनली अनअवेलेबल. आई डू फील, मैंने जब आपको बोला था ना कि योर पर्सन हैज़ सम फेयरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो सकती, इमोशनली अनअवेलेबल हो सकते हैं आपके पर्सन. उसकी वजह से क्या होता है कि वो अफेक्शन या फुल्ली कमिट नहीं कर पाते, ओपन अप नहीं हो पाते. मुझे ये भी लग रहा है कि जो सेटबैक से अभी वो गुजर रहे हैं उसके बाद में हो सकता है उनके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जा रहे हों, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल जो है वो इंसान को के ईगो को तोड़ देता है, उसकी बाउंड्रीज को ख़त्म करता है, उसके फियर्स को ओवरकम करने के लिए हेल्प करता है. दैट्स माई डॉटर बाय द वे. इमोशनल डिसकनेक्शन. आपको बहुत बार अपने पर्सन से इमोशनल डिस्कनेक्ट फील होता होगा. आपको लगता था कि यार ये इंसान क्या मेरे लिए फील भी करता है या नहीं.
और इसीलिए उन्होंने ये बोला भी था कि आई फेल टू गिव यू, निग्लेक्ट का कार्ड आया था, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट। जेलेसी का कार्ड आया है, मुझे लगता है कि somebody around you could have jealousy, या आपके पर्सन की जेलेसी की टेंडेंसी रह सकती है। अगर fearful अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है तो हो सकता है कोई फुली कमिट भी नहीं कर पा रहे थे और आप किसी और से बात करते थे, बहुत जेलस फील करते थे। आई डू फील दैट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ यू। इमोशनल इमेच्योरिटी, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को सीरियसली इमोशनल इश्यूज हैं एंड दे आर राइट नाउ, जो भी हो रहा है उनके साथ में वो उसमें वो ग्रो कर रहे हैं, दे आर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस। And when I see Ace of Cups, it's like, realizing that how much they love you. Now they are being emotionally more vulnerable and open. और अगर पास में जैसे मैंने देखा था कि सिर्फ ओनली बहुत ही इमेच्योर एनर्जी थी, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, विच इज द कार्ड ऑफ वेरी पैशन ड्रिवन कम्युनिकेशन। बट नाउ आई सी दैट एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि दे आर रियली सीरियस this time around. They're serious in working on this connection. They're seriously about to work on this connection. वो बहुत seriously इस connection पे काम करना चाहते हैं. They really want to offer something strong and stable, and that is for sure. That's what I see here. Okay, Jagabra, please cleanse my space, cleanse my energy fields, cleanse my cards, cleanse my altar, cleanse my mind, body and soul from any residues of the previous reading. Thank you so much. So beautiful. चलिए अभी उनकी तरफ से messages check कर लेते हैं. Guys, but I love it when the energies are 100% accurate. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का दिल खुल रहा है. It is becoming crack opened. उसमें से बहुत सारा प्यार निकल रहा है आपके लिए. And now they are realizing their mistakes. They are going through the last straw, which is like the karmic battles that they are going through. वो फिनिश करके दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड दिस टाइम दे वांट टू मेक इट अ सीरियस कमिटमेंट टू यू. आगे चलिए मुझे बताइए, अगर मेरे व्यूअर जिनके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है, सेपरेशन एंग्जाइटी हो सकती है, जो भी है प्लीज़ मुझे बताइए. अगर वो बिना किसी फियर के कुछ भी कहते तो वो क्या कहते हैं? शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. If you guys need a personal reading in this situation, please connect with me. I long for your kiss. A lot of passion is coming through. How could you ever forgive the mess I have made? Overall, bottom deck energy. उनको realization है कि उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए इस कनेक्शन में. उनको ये समझ में आ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे माफ़ कर पाओगे? मैंने कितनी सारी गलतियाँ करी हैं, कैसे माफ़ करोगे आप मुझे? और ये यू वर राइट. आपने जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड हमेशा सच बोलती है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आपकी एनर्जी थी. आपने बोला ये गलत है, ऐसे नहीं चलेगा, आप ये करोगे तो चलेगा. या आपने उनके झूठ पकड़े और आपने उनसे बहुत सारी चीज़ें कन्फ्रंट करी है. यू वर राइट कह रहे हैं वो. तो वो समझ रहे हैं अगर उन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई है, झूठ बोले, मैनिपुलेशन किया है, या कहीं वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि वो इमोशनली अनअवेलेबल थे, जो कि दिख रहा है उनके सारे कार्ड्स में, ब्लॉकेजेस में. हो सकता है आपने उनको कॉल आउट किया था कि ये नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चलेगी. और आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप सही बोल रहे थे. आपने जब बोला कि मैं इमोशनली अवेलेबल था, आपको जो चाहिए, जो डिजर्व करते हो वो मैंने दिया नहीं कनेक्शन में. यू वर राइट. वो कह रहे हैं कि आप सही हो. हाउ कुड आई गो बैक इन टाइम? आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली. इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली. वो कह रहे हैं कि अगर मैं समय को पीछे कर पाता तो मैं सारी चीज़ें फिर से अलग तरीके से करता, क्योंकि अब उनको अपनी गलतियां दिखाई दे रही हैं. वाई डू आई फील सो लॉस्ट? आपके पर्सन अभी जो सिचुएशन में है वो बहुत मेस्ड अप सिचुएशन. उनकी लाइफ अभी सही नहीं चल रही है. डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको तोड़ के रख लेता है. कार्मिक बैटल्स, डार्क नाइट ऑफ द सोल. आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर एक्यूरेट. दिस इज 100% एक्यूरेट एनर्जी. क्लेम इट विद 1111. आपके पर्सन को अभी हीलिंग की ज़रूरत है. वो जिस दौर से गुजर रहे हैं, आप सोने से पहले प्लीज़ अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और प्रे कीजिए यूनिवर्स से. आप जिस भी देवता को यकीन करते हैं, जिस भी रिलीजन के हैं, जिसको भी प्रे करते हैं, उनको प्रे कीजिए कि प्लीज़ मेरे पर्सन को स्ट्रेंथ दीजिए. वो जिस भी दौर से गुजर रहे, जो समय उनका चल रहा है, उसमें वो बहुत तकलीफ़ में है. डार्क नाइट ऑफ द सोल बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है.
एक इंसान के लिए। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अ सोल। काफ़ी लर्निंग्स होती हैं, काफ़ी कर्मा कटरे होते हैं और इंसान एक साथ में बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा होता है। प्लीज़ उनको हीलिंग भेजिए ताकि वो इससे उभर पाए, निकल पाए। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। आपके पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, आप उनके जहन में हमेशा रहते हो। दिस इज ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइस। 11 claim this energies. I can't handle your love. कहीं ना कहीं ये लग रहा है उनको कि अभी वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपके प्यार को अच्छे से ले पाएंगे, निभा पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। मैंने बोला ना कि अभी वो आपको इसीलिए वेट करवा रहे हैं क्योंकि वो अब सही सिचुएशन में नहीं है, कार्मिक बैटल से निकल रहे हैं। ओके, एंड आई लॉन्ग फॉर योर किस। ब्यूटिफुल एनर्जीज। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। आई लव फ्रेंड, द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट। आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। क्लेम दिस विद 1111। डोंट पुट अप विद माई बुलशिट। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने गलतियां करी है पास में। वो कह रहे हैं कि मेरी गलतियों को मुझे एहसास है, अब अगर मैं ये सब चीज़ें दोहराऊंगा तो प्लीज़ उसके साथ में आप निभा मत लेना बस। चलिए अभी और एक डेक से चेक करते हैं उनके मैसेजेस, इफ़ देयर आर एनी। आखिर जो केवल मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं उनके लिए। तो कार्ड्स आर फ्लाइंग। ओके, आई सी यू व्हेन आई क्लोज माई आईज। ब्यूटिफुल एनर्जीज। आंखें बंद कर लूँ तो एक चेहरा नजर आई, वो तुम ही हो सनम। आई समहाउ ट्रस्ट यू। मैंने बोला था कि आपके पर्सन को कुछ इश्यूज़ हैं जहाँ पर उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लेकिन वो आपके पास आके प्रोटेक्टेड फील करते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज। आई लव व्हेन द एनर्जीज आर एक्यूरेट। योर लाफ इज अमेजिंग। आपकी हंसी उनको बहुत प्यारी है। आई कुड लूज माई सेल्फ इन यू। वो आप में खो गए हैं या उनको डर लगता है कि कहीं खो जाएंगे आप में। यू मीन मोर टू मी देन यू थिंक। आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, ये कह रहे हैं आपके पर्सन। ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइस। क्लेम इट विद 1111। विल आई सी यू अगेन। उन्हें पता है उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, समय भी जा रहा है। वो कह रहे हैं कि क्या आपको वो वापस देख पाएंगे, क्या आप उनके लिए वेट करेंगे, कहीं देर तो नहीं हो जाएगी। उनको बहुत टेंशन हो रही है, बट कहीं ना कहीं उनको ये यकीन भी है कि आप वेट करोगे, बिकॉज आपके साथ में उनको एक अनफिनिश्ड बिजनेस भी फील होता है। आई फील लव, आई फील द लव। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको एहसास होता है कि आपने उनको कितना प्यार दिया। दे फील द लव। हैव आई लॉस्ट यू। इनसिक्योरिटीज ट्रिगर कर रही है उनको लग रहा है कि क्या मेरी गलतियों की वजह से हैव आई लॉस्ट यू। आप दूर तो नहीं चले गए हो। आई कैन होल्ड बैक एनी लॉन्गर। एक मन उनका है कि वो नहीं सोच पा रहे हैं। हम लोग चेक कर लेते हो कब तक आपको ये जो नई शुरुआत होने वाली है आपके कनेक्शन में, कब तक होने वाली है। लेट्स जस्ट चेक इट। लेट्स चेक द टाइम लाइन। चलिए आगे जो केवल मुझे बताइए, बट फर्स्ट मैं आपके लिए कुछ एडवाइस निकालना चाहती हूँ इस कनेक्शन के लिए। व्हाट शुड यू डू। आगे जो केवल मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है आपकी इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेके। वो कैसे इस कनेक्शन में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस कनेक्शन को बेटर कैसे कर सकते हैं ताकि उनके पर्सन को भी हेल्प हो। सबसे पहले तो जो कुछ हुआ है उसको प्रोसेस कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है आपके पर्सन ने गलतियां करी हैं, आपकी तरफ से भी कुछ गलतियां हुई हैं तो उसे भी एक्सेप्ट कीजिए। वैलिडेट योर पास्ट, क्योंकि जो भी अनस्पोकन चीज़ें हैं उसको अंदर रखने से अच्छा उसको बाहर निकाल के उसको प्रोसेस कर दो ताकि आपके अंदर भी कोई नेगेटिव एनर्जीज ना रहे। हम जब नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म कर देते तो हम और ओपन हो जाते हैं, हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, हमारी एनर्जीज अलाइन हो जाती है और हम हमारे लाइफ में या तो वो पर्सन या तो प्यार को अट्रैक्ट करते हैं, अबेंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका हो सकता है रूट चक्र इम्बैलेंस हो, फीलिंग ड्रेन्ड। आप मुझे लगता है कि ड्रेन्ड फील कर रहे होंगे ये सारी सिचुएशन में या ये सारी सिचुएशन को लेके सोच के। एक बार आप ओवरऑल चक्रा टेस्ट ले लीजिए। इफ़ यू नीड इट प्लीज़ डीएम कीजिए या फिर इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए। आई विल शेयर द लिंक ऑफ चक्रा टेस्ट विद यू। लैक ऑफ सेल्फ लव और सेल्फ केयर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया है, आपने इस कनेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है और उस वजह से आपने अपने आप को निगलेक्ट किया है।
उफ, एंड इस वजह से ये कार्ड आ रहा है लैक ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप वाइब्रेट कीजिए हायर सो दैट यू कैन अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। और जब अगर आप एक हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में होते हैं तो आप जब अपने ऊपर काम करते हैं तो आपके सोलमेट को बाय डिफॉल्ट बेनिफिट मिलता है उसका, इट डज इम्पैक्ट। आप अपने ऊपर फॉरगिवनेस पे काम कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस पे काम कीजिए, उनको भी हीलिंग मिलती है। देखा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरगिवनेस, फॉरगिव कम्स। आई लव इट व्हेन सी channeling and all, it really helps you increase your intuition. I love it when the energies are 100% accurate. So yes, अगर आप अपने पर्सन को या अपने आप को फॉरगिव करते हैं इस कनेक्शन के लिए या जो भी गलतियाँ हुई हैं, इट विल एलिवेट योर ओवरऑल ऑरा। अपने चक्रास हील हो जाएंगे। वंस योर हार्ट चक्रा ओपन्स अप, यू विल अट्रैक्ट लव एंड अबेंडेंस। गो आउट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, बाहर जाइए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। प्रोसेस योर फीलिंग्स अगेन, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कीजिए, जो भी हुआ है उसको प्रोसेस कीजिए। आई डू फील दैट कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर हार्ट चक्रा हैज़ बिन अंडर एक्टिव और ब्लॉक हो चुका होगा। सो या कहीं आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो देन दैट इज़ अ हार्ट चक्रा इशू। वी विल हैव टू सी इफ़ यू वांट टू हैव चक्रा टेस्ट लिंक, प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप, और मे बी आप इसके ऊपर कमेंट कीजिए एंड आई विल सेंड इट ऑन इन DM वीडियो। चलिए, मैं टाइमलाइन चेक कर रही थी। आई वॉज चेकिंग द टाइमलाइन। आपकी जगह पर मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पर्सन जहाँ पर यहाँ पर मुझे रीस्टार्ट का दिख रहा है, और रीस्टार्ट इज गोना हैपन इन दिस कनेक्शन, वो न्यू बिगनिंग कब तक होने वाली है? शो मी वन कार्ड एट अ टाइम। मुझे बताइए ये कनेक्शन में न्यू बिगनिंग कब तक होने वाली है? व्हेन इज दिस न्यू बिगनिंग हैपनिंग इन दिस कनेक्शन? Give me a second. ओके, तो चलिए देखते हैं टाइमलाइन क्या है। बहुत सारे लोगों के लिए अनसर्टेन है बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपके पर्सन और आप कितनी जल्दी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क नीडेड हियर। डार्क नाइट ऑफ द सोल इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम पीरियड। आपके पर्सन या आप उसमें से गुजर रहे हैं, तो आई एम सेंडिंग यू एब्सोल्यूट लव एंड डिवाइन हीलिंग एनर्जीज। मे द यूनिवर्स हेल्प यू थ्रू दिस टाइम। प्लीज क्लेम इट विद आई रिसीव। The viewer is going through the dark night of the soul. Please be with them. Archangel, please be with my viewer. Claim it with I receive. 4 months for a lot of you. It could be happening in 4 months because आपके पर्सन अभी जूझ रहे हैं अपने karmic battles से. For a few of you, it will be 11 months. This is general reading. If you guys want a personal reading, please connect with me on my WhatsApp. I'm sending you absolute love and divine healing energies. Take care, guys. I'll see you in my next video.